So, dear all students, now we are going to discuss about the second division among the members of plant that's called as a bryophyta, जिनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट कहते हैं. तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं. पहले मैं आपको ब्रायोफाइट्स का डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर उसके दो टाइप पढ़ाऊंगा, लिवरवर्ट्स और मोसेस. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ब्रायोफाइट्स commonly called as a amphibian plant. Bryophytes are commonly called as a amphibian plant just because of what? अब हम अगर एनिमल की कैटेगरी में देखें, जस्ट लाइक अ टोर्टोइस एंड क्रोकोडाइल, दे आर एम्फीबियन एनिमल. So why they are called amphibian? Because they generally show their dual mode of life. When they are in the water, they can also respirate, but they can also come on the ground, and from ground they can also return back to water. So they are showing dual mode of life, that is amphibian. But according to the plant, according to the bryophytes, amphibian meaning is something different. They are requiring water. They are requiring water for completing life cycle and fertilization. Therefore, they are called amphibian plant. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था why amphibian plants are called as why bryophytes are called as the amphibian plant, just because they are requiring water for completion of their life cycle as well as fertilization. These are the plant which are compulsory required water for completing their life cycle as well as fertilization, and that is why we are calling them as a एम्फीबियन प्लांट. आप माइंड में फिक्स कर लो इनको एम्फीबियन प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, तभी हम इनको कहते हैं एम्फीबियन प्लांट्स. हाँ, सी दे आर फाउंड इन द डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस, मतलब ये ठंडी जगहों पर और ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पे पानी ज्यादा हो. सो जस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग वाटर, देयरफॉर दे आर फाउंड इन डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस. सेकंड, it may be thalloid or vegetative body attached to the substratum by rhizode. अब ये देखिए एम्फीबियन प्लांट्स, सॉरी ब्रायोफाइट्स, अगर देखें तो ब्रायोफाइट्स में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी है जो थैलोइड है और कुछ स्पीसीज ऐसी है जो वेजिटेटिव है. थैलोइड का मतलब when the plant body is not differentiated into root, stem and leaves. When the plant body is not differentiated into root, stem and leaves, such plant body is called as a amphibian plant. जिस प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, मतलब हमें क्लियरली समझते नहीं है, वैसे प्लांट को हम कहते हैं थैलोइड प्लांट. तो बेसिकली अलगी सभी थैलोइड होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स में कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो थैलोइड होती है और कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो नॉर्मली वेजिटेटिव बॉडी होती है. वेजिटेटिव बॉडी मींस इन विच यू कैन सी द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर देयर properly. Okay, now they are attached to the substratum by the rhizode. Now what is meant by attached to substratum? Say for example, this is the you can say lower portion, root portion of the plant body, and this is the upper portion of plant body. So they are attached to the bottom portion by the rhizode. What is rhizode? Generally bryophytes do not have a true root, true stem and true leaf. Generally bryophytes do not have a true roots, true stem and true leaves. So if a true roots are absent, then it is replaced by what? It is replaced by hair like structure called as a rhizode. तो इनके अंदर true roots नहीं होते हैं क्योंकि इनके अंदर seed नहीं है ना. True roots कैसे कहते हैं, हम कैसे true roots कहते हैं? When the roots are produced from the radical portion of a seed, it is called true roots. When the roots are produced from radical portion of a seed, it is called true roots. But they are not having a true roots. Instead of a true roots, they are replaced by the hair-like structure called as a rhizoids. Okay, next point, they lack true roots, stem and leaves. मैंने आपको अभी बताया, and may have leaf, stem, root-like organ. मतलब इनके अंदर true roots नहीं है, लेकिन roots के जैसे स्ट्रक्चर है. इनके अंदर true stem नहीं है, लेकिन stem के जैसे स्ट्रक्चर है. इनके अंदर true leaf भी नहीं है, लेकिन leaf के जैसे स्ट्रक्चर है. Means true root is absent, but it is replaced by the rhizode. True stem is also not present, but they are having stem-like organ, and true leaves are also absent, but they are having leaf-like organ. So leaf-like organ is working like a leaf, doing for photosynthesis. Stem is working like a stem, and true root is replaced by rhizode. It is also working like a root. मतलब उनमें ओरिजिनल चीजें नहीं है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में दूसरे ऑर्गन है. नेक्स्ट, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. अगर मेन प्लांट बॉडी अगर हम देखें तो हैप्लॉइड मतलब दे हैव अ
1n means single chromosome inside the nucleus, so they are haploid and produce gametes, that's why we call them as a gametophyte. जनरली इनके अंदर जो सबसे इनकी जो पूरी प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, लेकिन बेसिकली इनके अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, इसके लिए हम इनको कहते हैं गैमेटोफाइट. बेसिकली ब्रायोफाइट्स आर द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बट दे प्रोड्यूसेस गैमेट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी. नेक्स्ट द सेक्स ऑर्गन्स आर, सेक्स ऑर्गन देखिए इनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्युलर है. सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्युलर मेड बाय द मेनी सेल्स. Now you have to remember male and female sex organ. Male sex organ is called antheridium, which produce antherozoid as their gamete, and female sex organ is archegonium, which produce single egg. Male sex organ is antheridium. Male sex organ is antheridium, which produces antherozoid as a gamete. Female sex organ is archegonium, which produce egg-like structure, which produces a egg-like structure, or you can say egg. Egg is a female gamete. जैसे फ्लावरिंग प्लांट में कैसा होता है, मेल ऑर्गन इज एंड्रोशियम which produce pollen grain or microspore. Female gamete is a what? In case of female gamete, it is a gynoecium. You can call pistil. You can call carpel, which produces a female gamete. Which produce female gamete? It is called megaspore or egg. So microspore male, megaspore female. Microspore produced from एंड्रोशियम, मेगास्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम गाइनोशियम, पिस्टिल और कार्पेल. तो यहाँ पे उनके नाम जो है वो रिप्लेस है. मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम. मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड एंथेरोजोइड, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस फीमेल गैमेट सच एज एग, और यू कैन आल्सो कॉल इट मेगास्पोर. बट यहाँ पे मेगास्पोर नाम नहीं है बिकॉज एंथेरोइड और एग्स यूज करते हैं. देन एंथेरोजोइड रिलीज इन वाटर and fuse with egg to form zygote. ये देखिए, just imagine this one is the हम consider करते हैं sperm के जैसे, this one is the antherozoid and this one is the egg. Antherozoid release from the male body into the water and egg also release into the water, so they undergo fertilization with each other. Why they are released in water? Because what we says, they are requiring water for the fertilization and as well as कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल. मेल का जो गैमेट होता है एंथेरोजोइड वो वाटर में रिलीज होता है, फीमेल का जो गैमेट होता है वो भी वाटर में रिलीज होता है. ये दोनों वाटर में क्यों रिलीज होते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन. मेल का जो एंथेरोजोइड वो स्विम करके बेसिकली फीमेल के पास आता है एंड अल्टीमेटली दे अंडरगो फर्टिलाइजेशन. सो दिस फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायरिंग वाटर, देयरफॉर वी आर कॉलिंग देम एज अ एम्फीबियन प्लांट. ओके गाइस, नेक्स्ट zygote produce multicellular body called sporophyte. अब zygote produce होगा ना, like antherozoid and egg. Antherozoid male gamete plus female gamete egg together after fusion they produce a zygote. तो zygote में से क्या होता है ये देखिए, zygote produce multicellular body called sporophyte. What is sporophyte? A complete plant body is called sporophyte. Complete plant body is called sporophyte, which have a root-like, stem-like, leaf-like structure, which undergo meiosis to produce haploid spore. मैंने आपको पहले ही क्या कहा, ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? वो हैप्लॉइड कैटेगरी में आते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम वाला गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल क्रोमोसोम वाले सेल प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. अब ये देखिए, ये है मेल का एंथेरोजोइड, ये फीमेल का है एग. ये दोनों वाटर में आते हैं और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट. और वो जाइगोट आगे चल के क्या बनेगा? आगे चल के नई प्लांट में कन्वर्ट होगा, मतलब आगे चल के क्या बन जाएगा? वो एक नया स्पोरोफाइट बनेगा, और वही स्पोरोफाइट आगे चल के मियोसिस करेंगे, और मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होंगे? हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि ब्रायोफाइट स्टार्टिंग से और एंड में हमेशा हैप्लॉइड ही रहते हैं. सो दिस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द ब्रायोफाइट्स. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स देयर स्पेसिफिक टाइप लाइक लिवरवर्ट्स एंड मोसेस. So now we are going to discuss with the first type of bryophytes. As I told you the basic characteristics about the bryophyte, now we are going to discuss about the first type, that's called liverworts, and after this we will discuss about mosses. So liverworts, start. The liverworts grows at moist places such as a stream, marshy ground, maybe damp soil and
bark of a tree. तो बेसिकली जैसे हमें पता है कि liverworts are the type of a bryophytes and bryophytes are the amphibia. So liverworts are also amphibia. तो ये वही जगह पे पाए जाएंगे जहां पे पानी ज्यादा हो. Just like a moist places, water is there. Stream, marshy, they are also the containing more water. Damp soil, they are also containing water. And bark of a tree, tree तो generally moisture होते हैं. तो वो सभी जगह है जहां पे water available है. तो बेसिकली liverworts वहां पे पाए जाते हैं. Second, the plant body of liverworts is thalloid. Example in Merchantia. What is thalloid? हमने पहले भी देखा. When the plant body is not differentiated into root, stem and leaves, it is called thalloid. मैंने आपको पहले ही कहा कि ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरी आती है, लिवरवर्ट्स और मोसेस. और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो थैलोइड होते हैं जिनमें रूट स्टेम एंड लीफ क्लियरली नहीं दिखते हैं, और कुछ प्लांट वेजिटेटिव होते हैं जिनके अंदर रूट स्टेम एंड लीफ क्लियरली दिखते हैं. तो ये वाले कौन है लिवरवर्ट्स? लिवरवर्ट्स होते हैं थैलोइड. एग्जांपल इसका मर्चेंशिया. देन asexual reproduction is either by fragmentation or asexual reproduction is either by the fragmentation of thalli. Thalli मतलब plant body. Yes. और फॉर्मेशन ऑफ गैमी. अभी ये गैमी क्या है? गैमी को जेमी भी कह सकते हैं. मैं आपको मशरूम में बताता हूँ एग्जांपल. यस, ये समझ में एक मशरूम है, ठीक है. तो मशरूम अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करते हैं? बर्ड प्रोड्यूस करते हैं. फिर वो बर्ड धीरे धीरे जाके बड़ा हो जाता है और पेरेंट से सेपरेट हो जाता है. फिर वो खुद एक मशरूम में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज बाय बर्डिंग. तो सेम वे ब्रायोफाइट्स में भी बर्ड के जैसा एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं जेमी. इट इज बर्ड लाइक. ये बर्ड के जैसा है, बर्ड नहीं. यस, इट इज नॉट अ बर्डिंग प्रोसेस, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सी, जेमी मींस बर्ड जैसा है ना. जेमी आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एंड असेक्सुअल बर्ड व्हिच डेवलप इनटू द जेमा कप्स. अब जेमा कप्स मतलब क्या? सी, मशरूम में छोटा जो मशरूम है, बर्ड मशरूम, वो बड़े मशरूम में से पैदा प्रोड्यूस होता है. तो मतलब यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में जो गैमी है, वो गैमी एक गेमा कप नाम के ऑर्गन में से बाहर निकलते हैं. सो गैमी आर प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द गेमा कप लाइक ऑर्गन. गेमा कप याद रखो है, गैमी आर प्रोड्यूस फ्रॉम द गेमा कप. ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अब ये जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रॉम द मशरूम अ स्मॉल बर्ड इज प्रोड्यूस. दिस बर्ड रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट्स वन, बट व्हेन इट बिकम्स अ मैच्योर इट गेट्स सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बर्ड एंड स्टार्ट देयर ओन ग्रोथ. दैट इज बर्डिंग. बट हियर जेमी आफ्टर मैच्योरिटी, यहां पर भी मैच्योरिटी. जेमी आफ्टर मैच्योरिटी डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी मींस सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म्स अ व्हाट? न्यू स्पोरोफाइट. फॉर्म्स अ न्यू स्पोरोफाइट. व्हाट इज न्यू स्पोरोफाइट? न्यू स्पोरोफाइट मींस न्यू प्लांट बॉडी. So Jemmy, here a small bird of a mushroom convert into the mature birds after getting separate from the parent body. Here Jemmy after getting mature it gets separate from the parent plant and start their own new sporophyte, forms their new sporophyte. New sporophyte means new plant body. New sporophyte means new plant body. Next, during sexual reproduction, male or female sex organ are produced either on a same or different plant. तो मतलब इनके अंदर यूनिसेक्सुअल प्लांट भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल प्लांट भी हो सकते हैं. यूनिसेक्सुअल मतलब like one plant is there only male organ is present, Antheridium, and one plant is there where only female organ is present, Archegonium. But there are certain plant in which Antheridium and Archegonium are present on the same plant. So bryophytes में दो प्रकार के प्लांट होते हैं. एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ मेल ऑर्गन होते हैं लाइक एंथेरिडियम. एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर फीमेल ऑर्गन होते हैं, आर्चिगोनियम. लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके अंदर मेल फीमेल दोनों एक साथ में होते हैं. बाइसेक्सुअल प्लांट हम इनको कहेंगे जैसे. यस, so this is the liverworts. Let's move towards the mosses. So now we are going to discuss about the mosses, a second type of a bryophytes. First we discuss about the liverworts, now it's about mosses. Let's start with the one by one character. First, life cycle have a two stage, means life cycle of a mosses have a two stage. दोनों stages समझ लीजिए, काफी important है आप लोगों के लिए. लोग उस स्टेजेस के नाम याद रखते हैं लेकिन उनका डिफरेंस समझते ही नहीं. लाइफ साइकिल ऑफ अ मोसेस हैव अ टू स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज अ प्रोटोनेमा स्टेज एंड सेकंड स्टेज इज अ लीफी स्टेज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेमा एंड लीफी स्टेज? इन अ प्रोटोनेमा स्टेज it developed directly from spore
and leafy stage it develop directly from secondary protonema. मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोनेमा स्टेज होती है और वो प्रोटोनेमा स्टेज में, उस प्रोटोनेमा स्टेज में स्पोर में से प्लांट बनते हैं और ऑब्वियसली ब्रायोफाइट्स से तो स्पोर में से ही बनेंगे बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर yes they are cryptogam, they are spore producing plants. So protonema stage means development of a plant from the spore and leafy stage means development of a plant from प्रोटोनेमा स्टेज. मतलब ये वाली स्टेज किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोटोनेमा के ऊपर है और प्रोटोनेमा किसके ऊपर डिपेंड है, वो स्पोर के ऊपर डिपेंड है. तो ये वो फर्स्ट पॉइंट अपना. सेकंड, they are attached to the soil through the multicellular and branch rhizome. Yes, they means these bryophytes are attached to the soil. Like every plant is attached to soil via root, but bryophytes do not have a true roots and their roots are replaced by what? Rhizoids. So simply bryophytes are attached to the soil through the multicellular rhizoids. Through the multicellular rhizoids. Are you getting guys? Simply कोई भी प्लांट में रूट सॉइल से अटैच होता है लेकिन ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं है क्योंकि इनके अंदर सीड ही नहीं है तो ट्रू रूट्स नहीं होंगे. तो ट्रू रूट्स की जगह पर इनके अंदर क्या रिप्लेस किया गया हुआ है, राइजोइड. तो सिंपली ब्रायोफाइट्स आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स. नेक्स्ट वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आइदर बाय फ्रेगमेंटेशन और आइदर बाय बडिंग. तो इनके अंदर दोनों है. अब तक हमने जैसे पिछला देखा लिवरवॉर्ट्स, उसमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन था, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अभी फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों के दोनों दिए हुए हैं. देन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस लीफी स्टेज. इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया वो दोनों मिला के बेसिकली लीफी स्टेज बनाते हैं. Then after fertilization, zygote develop into new sporophyte. Obviously ये तो दुनिया की सबसे कॉमन चीज है. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होता है और जाइगोट के बाद नया प्लांट बनता है, मतलब नया स्पोरोफाइट बनता है. ह्यूमन में जाइगोट में से न्यू चाइल्ड बनता है, न्यू ह्यूमन बीइंग बनता है. देन कैप्सूल प्रोड्यूस स्पोर एंड आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस. ऑब्वियसली इनके अंदर जो स्पोर होंगे वो मियोसिस से ही तैयार होंगे. व्हाई इट इज सो, क्वेश्चन मार्क है आपके सामने. स्पोर्स आर एक्चुअली हैप्लॉइड. सो हमने लिवरवॉर्ट्स में भी देखा और ब्रायोफाइट्स की शुरुआत में भी देखा दैट ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड प्लांट एंड दे आर प्रोड्यूसिंग स्पोर बाय व्हिच प्रोसेस, meiosis. Just because meiosis is producing haploid spore, माइटोसिस से डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. एग्जांपल है बेसिकली मोसेस के फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम. सो दिस इज अबाउट द मोसेस. तो हमने इसमें ब्रायोफाइट्स देखा, इसमें हमने टाइप ऑफ ब्रायोफाइट मतलब लिवरवॉर्ट्स और मोसेस देखा. सो दिस इज आवर ब्रायोफाइट्स.